Good morning, students. In last video lecture, we have seen the properties of square and kites and some remarks on the quadrilateral, and then we have proved the theorem 8.1 and 8.2. Today, we are going to again prove the theorem, that is theorem 8.3. What is theorem 8.3? See, theorem 8.3 is a statement I am writing. Theorem 8.3. If each pair of opposite sides of a quadrilateral is equal, then it is a parallelogram. What we have to prove that first you see statement, if each pair of opposite sides of a quadrilateral is equal. Here in the question it is given that opposite sides of a quadrilateral is equal. What? Opposite sides of quadrilateral are equal. Then agar opposite sides of quadrilateral are equal, then it is a parallelogram we have to prove. So see, A, B, C, D. What is given? AB parallels to CD and AD parallels to BC. So, I am writing given here AB equals to CD and BC equals to DA. AB equals to CD and BC equals to DA. This comes from this statement of from here. Now, to prove, what we have to prove? Prove ABCD is a parallelogram. What is the condition of parallelogram? Condition of parallelogram is that either you prove AB parallels to CD and BC parallels to AD, because in parallelogram pair of opposite sides are parallels to each other. Yeah, you prove that angle A equals to C, angle B equals to angle D. So for us it is easy to prove AB parallels to CD and BC parallels to EA. How? Either you join BD or AC. Join BD or AC. Now, here, when we join AC, construction, join AC. Join AC. When we have joined AC, the quadrilateral has been divided into two triangles. The triangle is triangle ABC and triangle ADC. So when we will prove that triangle ABC congruent to triangle ADC, how we will prove AB of triangle ABC or CD of triangle ADC equals, and this equals to this, and AC are common. What? AC is common. So by SS congruency, triangle ABC will be parallel to triangle ADC. क्या होगा? Triangle ABC will be congruent to triangle ABC. उसके बाद क्या होगा? This angle will be equals to this angle and this angle will be equals to this angle. कैसे? AC ट्रांसवर्सल लाइन मेक करेगा. बाई CPCT ये हो जाएगा. बाई CPCT this 1 2 3 4
1 will be equals to 4 and 2 will be equals to 4. क्या हो जाएगा अल्टरनेट, ये क्या हो जाएगा बाय CP/CT. अब एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2. अब यहाँ पे क्या होगा, एंगल 1 and angle 4 will be alternate interior angle where AC is transversal line on AB and CD. तो जब एंगल 1 और एंगल 4 इक्वल है मींस क्या हो जाएगा, इससे हमारा आ जाएगा AB पैरेलल टू CD और 2 AC will be transversal line किसके साथ, ये लाइन सेगमेंट BC और AD के साथ. देन क्या हो जाएगा, BC पैरेलल टू AD. सो लेट अस सी द प्रूफ. प्रूफ क्या होगा, इन ट्राइंगल ABC and triangle ADC we have what we have, AB equals to CD given, next BC equals to DA, it is also given. ये given हो गया. AC कॉमन, AC हमारा क्या हो गया कॉमन बाय SS कॉन्ग्रुएंसी थ्योरम. ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल किसके होंगे, ट्राइंगल CDA बाय CP/CT. क्या होगा, एंगल DCA इक्वल्स टू एंगल BAC. This is point number 1. And similarly DCA, now DAC, angle DAC equals to BCA. This is point number 2. Now what we have DAC and BAC and DAC and DCA are alternate interior angle with transversal side. What we will have here, these alternate interior angle are formed by transversal line segment AC. कौन सा, ट्रांसवर्सल AC के थ्रू, ट्रांसवर्सल AC के थ्रू ऑन लाइन सेगमेंट. कौन से लाइन सेगमेंट, ऑन लाइन सेगमेंट AB and CD and BC DA. जो ये वाला 4 और 1 जो होगा, 4 और 1 क्या है, किसके थ्रू बना है, ट्रांसवर्सल AC किसके ऊपर, AB और CD. इसे इंप्लाइज क्या हो जाएगा, that will implies that AB parallels to CD. ये इंप्लाइज क्या कर रहा है, AB parallels to CD. और दूसरा क्या आ जाएगा कि एंगल्स 2 इक्वल्स टू एंगल 3. ये लाइन सेगमेंट AC किस पे फॉर्म हो रहा है, BC और AD. नाउ दिस विल बी 3 एंड आल्सो BC पैरेलल्स टू DA. ये हो गया. तो क्या हो जाएगा, फ्रॉम 3 and 4 ABCD is a parallelogram. क्या हो गया, ABCD हमारा पैरेललोग्राम हो गया. हमें प्रूफ क्या करना था इस कि थ्योरम 8.3 में कि ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है, उसका अपोजिट साइड्स इक्वल है. अपोजिट साइड इक्वल है तो देन वो क्या होना चाहिए, पैरेललोग्राम. तो हमने क्या किया, इसमें इस थ्योरम में हमने क्या किया, ज्वाइन AC कर दिया. AC को हमने ज्वाइन कर दिया. AC को ज्वाइन करते ही हमारा क्या हो जाएगा, क्वाड्रिलेटरल विल डिवाइड इनटू 2 ट्रायंगल्स.
ABC और ADC। अब हम इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिए। कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के बाद कौन से प्रॉपर्टी से हुआ, एसएस कॉन्ग्रुएंसी थ्योरम से। उसके बाद बाइसिपिसिटी क्या हो जाएगा, एंगल DCA इक्वल्स टू एंगल BAC और एंगल DAC इक्वल्स टू BAC। ये हमारे पास आ गया। अब क्या हो जाएगा कि ये अल्टरनेट इंटीरियर है, किससे फॉर्म हुआ है, ट्रांसवर्सल लाइन AC के थ्रू। कौन से एंगल, ट्रांसवर्सल लाइन AC के थ्रू। तो उससे इंप्लाइज क्या हो जाएगा, AB पैरेलल्स टू CD, BC पैरेलल्स टू DA। नाउ मूविंग ऑन नेक्स्ट थ्योरम, दैट इज थ्योरम 8.4। थ्योरम 8.4, in a parallelogram opposite angles are equal, opposite angles are equal। क्या है, अपोजिट एंगल इक्वल है, हमें ये प्रूव करना है। अब क्या होगा, सी एक पैरेललोग्राम है, उसमें अपोजिट एंगल इक्वल है, ये हमें प्रूव करना है। सी ए बी सी डी, ये हो गया हमारा फिगर। एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी डी। फर्स्ट गिवन, व्हाट इज गिवन, गिवन ABCD is a parallelogram, ABCD is a पैरेललोग्राम। क्या है, ABCD पैरेललोग्राम है। टू प्रूव हमें क्या प्रूव करना है, एंगल A इक्वल्स टू एंगल C एंड एंगल B इक्वल्स टू एंगल D। Now in proof you see, since ABCD is a parallelogram, क्या हमारा ABCD पैरेललोग्राम है, तो क्या होगा, AB पैरेलल्स टू CD एंड BC पैरेलल्स टू DA। ये हो गया AB पैरेलल्स टू CD और BC पैरेलल्स टू DA। और हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ा था पैरेललोग्राम में कि सम ऑफ कॉन्जिक्यूटिव एंगल इज 180 डिग्री। जो कॉन्जिक्यूटिव एंगल क्या है, उनका सम क्या है, 180 डिग्री है। मींस अगर हम ट्रांसवर्सल लाइन AD ले लें, if we are taking transversal line AD, then angle A plus angle D will be consecutive angle and sum of these angle will be 180 degree. And similarly, if suppose let AD is a transversal line, then angle A and angle D are consecutive angle। कौन सा हो गया, कॉन्जिक्यूटिव एंगल। सो एंगल A प्लस एंगल D इक्वल्स टू 180 डिग्री। दिस इज पॉइंट नंबर 1। ये क्या हो गया हमारा पॉइंट नंबर 1। सिमिलरली AB को हम ट्रांसवर्सल लाइन मानते हैं। लेट AB इज अ ट्रांसवर्सल लाइन, देन A and B विल बी कॉन्जिक्यूटिव एंगल। AB इज अ ट्रांसवर्सल लाइन, क्या है हमारा, AB कौन सा लाइन है, ट्रांसवर्सल लाइन। देन एंगल A एंड एंगल B आर कॉन्जिक्यूटिव
एंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्जिक्यूटिव एंगल मींस एंगल A प्लस एंगल B इक्वल्स टू 180 डिग्री। ये हो गया। नाउ वी विल सी पॉइंट नंबर 1 एंड पॉइंट नंबर 2। जब यहाँ पे क्या है, A प्लस D 180 है और एंगल A प्लस एंगल B इक्वल्स टू 180 मींस हम इस तरीके से भी कर सकते हैं, फ्रॉम 1 एंड 2 क्या आ जाएगा, एंगल A प्लस एंगल्स D इक्वल्स टू एंगल A प्लस एंगल B। एंगल A कैंसिल, एंगल D इक्वल्स टू एंगल B। ये आ गया हमारा, क्या आ गया, एंगल B इक्वल्स टू एंगल D। ये हो गया मींस हमारा एक प्रूव हो गया। तो बाय सिमिलरली क्या हो जाएगा, बाय सिमिलरली एंगल, सिमिलरली क्या लिख सकते हैं, सिमिलरली एंगल A इक्वल्स टू एंगल C। प्रूफ। थ्योरम 8.4 में हमारा क्या था, स्टेटमेंट क्या था, इन पैरेललोग्राम अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। हमें प्रूफ क्या करना है कि पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल्स इक्वल है। तो हमने, हमारे पास क्या होगा, AB पैरेलल्स टू CD और BC पैरेलल्स टू DA। हमारे पास क्या है, AB पैरेलल्स टू CD और एंड BC पैरेलल्स टू DA। अब क्या हम यहाँ पे अज्यूम कर रहे हैं कि AB ट्रांसवर्सल लाइन है। जैसे ही AD ट्रांसवर्सल लाइन है तो क्या होगा, एंगल A और एंगल D क्या हो जाएगा, कॉन्जिक्यूटिव एंगल, और इनका सम क्या हो जाएगा, एंगल A प्लस D विल बी इक्वल्स टू 180। सिमिलरली AB इज अ ट्रांसवर्सल लाइन। अब हम क्या कर, AB को ट्रांसवर्सल लाइन मान रहे हैं तो क्या हो जाएगा, एंगल A प्लस एंगल B क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। तो दोनों का सम 180 हो गया। तो क्या हो जाएगा, 1 और 2 से हम, फ्रॉम 1 एंड 2 से क्या जाएगा, एंगल A प्लस D इक्वल्स टू एंगल A प्लस B। A कैंसिल, एंगल D इक्वल्स टू एंगल B। और क्या हो जाएगा, सिमिलरली हम इस तरीके से प्रूव करके एंगल A इक्वल्स टू एंगल C प्रूव कर देंगे। नाउ मूविंग ऑन, नेक्स्ट थ्योरम इज थ्योरम 8.5। Theorem 8.5. Theorem 8.5. I am writing a statement. हमें क्या प्रूव करना है, हमें प्रूव करना है कि इन ए क्वाड्रिलेटरल ईच पेयर ऑफ अपोजिट एंगल इज इक्वल, देन इट इज अ पैरेललोग्राम। क्या प्रूव करना है कि अगर एक क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट एंगल इक्वल है तो वो क्वाड्रिलेटरल क्या होगा, पैरेललोग्राम होगा। एक नाउ लेट अस सी, this is quadrilateral, ABCD, एंगल A इक्वल्स टू एंगल C है और एंगल D इक्वल्स टू एंगल B। गिवन, व्हाट इज गिवन इन
quadrilateral ABCD, angle A equals to angle C and angle B equals to angle D. In quadrilateral ABCD, angle A equals to angle C है and angle B equals to angle D. To proof क्या करना है कि ABCD is a पैरेललोग्राम। क्या है? ABCD पैरेललोग्राम है। अब प्रूफ करना है। सी प्रूफ we have angle A equals to angle C and angle B equals to D. So by angle sum property of a quadrilateral, what we will have? By angle sum property of a quadrilateral, we will have angle A by angle sum property. किसके थ्रू? By angle sum property of a quadrilateral, we have what we have? Angle A, angle B, angle C plus angle D equals to 360. हमें मालूम है, हम क्वाड्रिलेटरल का फर्स्ट प्रॉपर्टी हमने क्या पढ़ा था? एंगल सम ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज 360. ये हो गया एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D इक्वल्स टू 360. यस. नाउ अब क्या होगा कि मान लो ये पॉइंट नंबर 1 था, ये है पॉइंट नंबर 2. फ्रॉम 1 and 2 वी है, हमारे पास क्या है? पॉइंट 1 और 2 से हमारे पास क्या हो जाएगा? पॉइंट 1 और 2 से हमारे पास है बी, सी के स्थान पे ए डाल देते हैं, डी के स्थान पे बी डाल देते हैं. तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल्स टू 360. सो ट्वाइस एंगल ए प्लस एंगल बी विल बी 360. एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल्स टू 180 डिग्री. अब देखो व्हाट वी गॉट, एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल्स टू 180 डिग्री. ये हमारे पास आ गया. यस. इससे क्या हो रहा है? व्हाट वी विल हैव कि ए बी ट्रांसवर्सल लाइन है. क्या है? ए बी यानी एंगल ए और बी क्या होगा? कॉन्जिक्यूटिव एंगल होगा ऑन ट्रांसवर्सल लाइन ए बी. ए बी ट्रांसवर्सल लाइन है किसके ऊपर? बी सी और ए डी के ऊपर. व्हाट? हियर एंगल ए एंड एंगल बी are consecutive. Here angle A and angle B are consecutive angle. Consecutive angle on transversal AB on the line segment. line segment कौन सा हो जाएगा? AD एंड BC. कौन से लाइन सेगमेंट पे? AD और BC लाइन सेगमेंट पे. जैसे ही AD और BC पे लाइन सेगमेंट पे ये होगा, अब जैसे AB ट्रांसवर्सल लाइन हो गया AD और BC पे, दिस विल इंप्लाइज क्या आएगा? दिस विल इंप्लाइज AD पैरेलल्स टू BC. हमने क्या कर दिया? AD पैरेलल्स टू BC प्रूव कर दिया. यस या नो? यस. अब नाउ ये मान लो इक्वेशन नंबर 3 है. इक्वेशन नंबर 3 हो गया. बाय यूजिंग इक्वेशन 2, equation 3 can be rewritten as, हम इसको क्या लिख सकते हैं दोबारा से? एंगल A प्लस एंगल D इक्वल्स टू 180. एंगल A प्लस एंगल D इक्वल्स टू 180.
अब क्या हो जाएगा, सेम एंगल ए और डी क्या हो जाएगा, कॉन्जिक्यूटिव एंगल हो जाएगा, और एडी क्या हो जाएगा, ट्रांसवर्सल लाइन। क्या होगा, एडी विल बी ट्रांसवर्सल लाइन ऑन लाइन सेगमेंट ए बी एंड सी डी। कौन से लाइन सेगमेंट पे, ए बी और सी डी लाइन सेगमेंट पे, ए बी और सी डी लाइन सेगमेंट पे ये ट्रांसवर्सल हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, व्हाट वी विल हैव अगेन here AD transversal AD on the line segment AB and CD। कौन से लाइन सेगमेंट पे है, कौन से लाइन सेगमेंट पे, AB और CD पे। This implies AB parallels to CD. This will be 4 and this will be 5. Now from equation 4 and 5 we have A, B, C, D is a पैरेललोग्राम। हमारा क्या हो गया, ए बी सी डी क्या हो गया, पैरेललोग्राम। दिस इज द प्रूफ ऑफ थ्योरम 8.5। हमने क्या क्या प्रूफ किया है, व्हाट वी हैव डन इन दिस थ्योरम। सी कि हमारे पास क्या था, ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम था, ये था ए बी सी डी। इसमें गिवन क्या था कि ए सी इक्वल्स टू एंगल ए इक्वल्स टू एंगल सी और एंगल बी इक्वल्स टू डी, ये इक्वल्स था। तो क्या था कि हमने क्या किया, एंगल सम प्रॉपर्टी का यूज किया। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल सेज दैट द सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज 360। जितने भी क्वाड्रिलेटरल है उसका एंगल को अगर हम सम कर ले तो उनका सम कितना आएगा, 360। तो एंगल ए इक्वल्स टू एंगल सी एंड एंगल बी इक्वल्स टू एंगल सी। हमने पॉइंट नंबर 1 पॉइंट नंबर 2 फाइंड कर लिया। बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ वी हैव एंगल ए बी सी डी क्या हो गया, 360 हो गया। अब एंगल सी के स्थान पे हम लोग क्या पुट कर देंगे, एंगल ए, और एंगल डी के स्थान पे एंगल बी, क्योंकि ऊपर में हमारे पास क्या है, ए सी इक्वल्स टू एंगल ए इक्वल्स टू एंगल सी और एंगल बी इक्वल्स टू डी, ये हमारे पास है। तो ये हो गया। अब क्या हो जाएगा, दो एंगल हो गए 2 और 2 एंगल ए एंड 2 एंगल बी। तो हमने 2 कॉमन ले लिया, 2 कॉमन इन ब्रैकेट एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल्स टू 360। हमारे पास क्या हो गया, ट्वाइस ब्रैकेट एंगल ए प्लस एंगल बी ब्रैकेट क्लोज इक्वल्स टू 360। तो एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल्स टू 180 हो गया। क्या हो गया, एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल्स टू 180, ये हो गया। अब जब हमारा ए बी एंगल ए और एंगल बी का सम कितना हो गया, 180, ये दोनों क्या है, कॉन्जिक्यूटिव एंगल है। पैरेललोग्राम में कॉन्जिक्यूटिव एंगल, तो यहाँ पे ए बी क्या होगा, ट्रांसवर्सल लाइन। क्या हो जाएगा, ए बी विल बी ट्रांसवर्सल लाइन। कौन से लाइन सेगमेंट पे, बी सी और ए डी। जिस लाइन सेगमेंट पे वो ट्रांसवर्सल होंगे, जो लाइन सेगमेंट होगा वो पैरेलल होगा। तो यहाँ पे लाइन सेगमेंट कौन सा हो गया, ए डी और बी सी। तो क्या होगा, ए डी पैरेलल्स टू बी सी। क्या हो गया, ए डी पैरेलल्स टू बी सी। अब सिमिलर, अब क्या करेंगे कि इक्वेशन 2 हमने इसको a प्लस बी इक्वल्स टू 180 को हमने इक्वेशन नंबर 4 मान लिया, और अब हम क्या करेंगे, एंगल बी के स्थान पे एंगल डी डाल देंगे। क्या प्रूफ कर, यहाँ पे क्या डाल देंगे, बी के स्थान पे डी या ए के स्थान पे सी डाल दो। एनी एंगल ए प्लस बी इक्वल्स टू 180, तो सेम कंडीशन हो जाएगा। अब हमारा क्या हो जाएगा, ए बी विल बी द ट्रांसवर्सल लाइन। क्या होगा, ए डी ट्रांसवर्सल लाइन होगा, और ए बी और अब क्या हो जाएगा, ए डी किस पर ट्रांसवर्सल हो जाएगा, ए बी और सी डी के ऊपर। कौन सा लाइन सेगमेंट, ए बी और सी डी के ऊपर ट्रांसवर्सल लाइन, ट्रांसवर्सल हो गया। मींस अब क्या हो जाएगा, ए बी पैरेलल्स टू सी डी। क्या होगा, ए बी पैरेलल्स टू सी डी। तो हमारे पास ए बी पैरेलल्स टू बी सी हो गया, ए बी पैरेलल्स टू सी डी। मींस
कि अपोजिट पेयर ऑफ साइड्स आर पैरेलल टू ईच अदर, यानी दो पेयर्स ऑफ पैरेलल साइड्स मिल गया। पैरेललोग्राम में क्या था कि अपोजिट साइड्स पैरेलल हो गया, दो पेयर ऑफ अपोजिट पैरेलल साइड्स आर पैरेलल, देन इट इज अ पैरेलल। हम क्या लिख रहे हैं फ्रॉम इक्वेशन 4 एंड इक्वेशन 5 वी हैव ABCD is a parallelogram. So today we have studied 3 theorems. First theorem was क्या था, if pair of a quadrilateral sides are equal then it is a parallelogram। यानी आज हमने क्या किया, आज के लेक्चर में हमने क्या किया कि क्वाड्रिलेटरल में अगर अपोजिट साइड्स इक्वल्स है तो पैरेललोग्राम होगा। दूसरा क्या था कि इन पैरेललोग्राम अपोजिट एंगल्स आर इक्वल्स वी हैव टू प्रूव। और थर्ड में क्या था कि एक क्वाड्रिलेटरल है उसमें अपोजिट एंगल इक्वल है, देन इट इज अ पैरेललोग्राम। थैंक यू, सॉल्व दिस थ्योरम इन योर नोटबुक। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।